اسٹوڈینٹس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈیتھ کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. ہاؤ ڈیتھ امیڈیٹ لائف کلچرل انفلوئنسز آن کنسیپشنز آف ڈیتھ اینڈ ٹائم. مطلب لائف کے بعد ڈیتھ کا پروسیس کیسے ہوتا ہے اور کس طرح سے ہمارے ڈیتھ اور ٹائم کا جو ہمارے مائنڈ میں کانسیپٹ ہے اور کس طرح ہم اس پہ بہیو کرتے ہیں کسی کی ڈیتھ پہ اپنی ڈیتھ کو لے کر. ٹھیک ہے. اس سارے کانسیپٹ کو کس طرح سے ہمارا کلچر, ہمارے ٹریڈیشنز, ہمارے نارمس, ہمارے ویلیوز, ہمارا انوائرمنٹ, ان سب کانسیپٹس کو کیسے افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. انٹرو کی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ دو ایسے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, ایسے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو ہر انسان کو ایکسپیرینس کرنے ہوتے ہیں ماسٹ. ٹھیک ہے جی. ایک تو کیا ہے برتھ کا, ہر انسان کو پیدا ہونا ہے. ٹھیک ہے. ایکسپیرینس آف بینگ بورن اینڈ ایکسپیرینس آف بینگ ڈائی. ٹھیک ہے. ہر انسان کو پیدا ہونا ہے اور ہر انسان کو مرنا ہے. یہ دونوں کام ہر انسان کو کرنے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں ہم لوگ, ہر انسان زیادہ تر ہم برتھ کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم لائف کو لے کر بات کرنا پسند کرتے ہیں, لیکن ہم ڈیتھ کے بارے میں بات کرنے سے ریلیکٹنٹ فیل کرتے ہیں کیونکہ ہم فیئرفل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ڈیتھ کو لے کر خوف کھاتے ہیں, ہم اس کے بارے میں بات کرنا زیادہ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے جی. اب زیادہ تر کیا ہوتا ہے, ہر کلچر میں ڈیتھ کو لے کر سیم ورڈس ہیں. ٹھیک ہے جی. ہر کوئی ڈیتھ کو ایک ہی طریقے سے ایکسپریس کرتا ہے کہ مر جانا. لیکن ہمارے جو ڈیتھ کو لے کر ہمارے مائنڈ میں جو میننگ ہے کہ مرنے کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو کانسیپٹ ہے یہ ہر کلچر میں بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں اسی طرح ڈفرینس ہے جس طرح کے ہمارا ایٹنگ کو لے کر. اب ایٹنگ جو بیہیویئر ہے وہ ہر انسان پرفارم کرتا ہے, ہر کلچر میں پرفارم کیا جاتا ہے. ہر کوئی کھاتا ہے, دن میں کئی بار کھاتا ہے. لیکن کھانے کو لے کر ہر کسی کا کانسیپٹ جو ہے کلچر میں جب ڈفرینس آتا ہے تو یہ والا کانسیپٹ بھی ڈفرینشیٹ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں سب سے پہلے جس طرح فار ایگزامپل اگر آپ مطلب پاکستانی, مسلم پاکستانی, ٹھیک ہے, تو جب میں کہوں کھانا تو آپ کے مائنڈ میں بھی آئے رائس یا چکن, روٹی, یہ سب آپ کے مائنڈ میں آئے. ٹھیک ہے. اور ایک بار اگر آپ فار ایگزامپل کورین چائنیز ہو تو پھر آپ کے مائنڈ میں بھی نوڈلز آئے, وہ سب چیزیں جو آپ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہندو ہو تو آپ کے مائنڈ میں آپ کے کلچر کی چیزیں آئیں. تو اسی طرح ہر کلچر میں ایٹنگ کا کنسیپٹ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ مطلب انہوں نے کیا کھانا ہے, انہوں نے کب کھانا ہے, انہوں نے کیسے کھانا ہے, انہوں نے کس ایج میں جا کر کیا کھانا ہے. جس طرح فار ایگزامپل جو فارن کلچرز ہے اس میں کیا ہے, الکوہل کو لے کر انہوں نے ایج لمٹس رکھی ہے کہ اس ایج کے بعد آپ الکوہل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے
अप्लाई किया जाता है, ठीक है। कुछ कल्चर में इस तरह कहा जाता है कि हर इंसान जो है फाइनल डेथ से पहले कई दफा मरता है। इस कल्चर में क्या है कि उनका डेथ को लेकर कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मतलब वो इस कॉन्सेप्ट के साथ एग्री नहीं करते हैं कि डेथ का ये मतलब है कि जब इंसान के जो फंक्शंस हैं किसी भी एनिमल या प्लांट जब परमानेंटली खत्म हो जाते हैं तो उसको हम डेथ कहते हैं। तो लेकिन वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेथ को डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंसान फाइनल डेथ से पहले भी कई दफा, ठीक हो गया। तो उनके लिए डेथ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस तरह डेथ का कॉन्सेप्ट जो है वो भी कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, ठीक हो गया। उसके बाद अब डेथ जो है उसको लेकर जो क्या कॉन्सेप्ट है कि डेथ होती क्या है, डेथ के बाद क्या होता है, ये भी हर कल्चर में हर रिलीजन में डिफरेंट होता रहता है, ठीक है जी, वेरी करता है। सॉरी, हाँ जी, जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म का ये कॉन्सेप्ट है कि जब एक दफा इंसान मरता है तो क्या है वो आगे रीबॉर्न करता है, दोबारा से पैदा होता है एक न्यू आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब नया जन्म, ठीक हो गया। नया जन्म आता है और फिर उसमें मतलब डेथ के बाद एक न्यू लाइफ आती है, वो इस तरह सात जन्म दोबारा दोबारा इंसान पैदा होता है और दोबारा दोबारा रहता है, ठीक हो गया। अब क्रिश्चियंस जो है उनका ये कॉन्सेप्ट है कि जब इंसान मरता है तो उसकी बॉडी जो है वो शेड हो जाती है, बॉडी उसकी खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी स्पिरिट जो है वो आगे जाती है, कुछ जो कुछ उसने इस दुनिया में किया होता है उस पे आप पर उसको आगे मतलब रिवॉर्ड मिलता है। अच्छे अमल किए होंगे तो उसको जन्नत मिलेगी, नहीं मिलेगी, अच्छे अमल किए होंगे, बुरे अमल किए होंगे तो उसको दोज़ख मिलेगी, ठीक हो गया। इस तरह और भी कल्चर्स में डेथ के बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है कि डेथ होती क्या है, वो क्या करने के लिए होती है, आगे जाके क्या करवाना होता है, इसको लेकर भी डेथ का कॉन्सेप्ट जो है वो हर कल्चर में डिफरेंट है, ठीक हो गया। कुछ कल्चर्स में ऐसे होता है कि वो डेथ को लेकर वो नहीं, उनका बिलीव कि डेथ के बाद परमानेंटली खत्म हो जाना है, ठीक है। जिस तरह के नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स और बुद्धिज्म में कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट है कि जो लोग मर जाते हैं और जो जिंदा होते हैं वो इकट्ठे भी रह जाते हैं, तो मतलब अगर इंसान की जिंदगी सही से नहीं गुजरी है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो रूह है वो अनहैप्पी हो, तो फिर वो क्या करती है, वो उसके बाद वो आ जाती है, लिविंग जो इंसान होते हैं उनके अंदर आ जाती है और उनके लिए परेशानी का बायस बनती है, उनको डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक हो गया। मतलब इस लिहाज से जो डेथ है वो एक परमानेंट जो है वो खत्म खात्मा नहीं, ठीक है, वो एक परमानेंट एंड नहीं है इनके मुताबिक, ठीक है जी, इस बिलीफ के मुताबिक। इस तरह कई दफा इस तरह भी होता है कि वो लोग कहते हैं कि उस इंसान का जो मौत हो चुका है उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, इससे मतलब जो लोग जिंदा है उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनका पीस डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक हो गया। इस तरह से भी कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। अब तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है कैल एलियट, उन्होंने बताया था कि दो किस्म की डेथ होती है, ठीक है। एक डेथ होती है एक्सेप्टेबल डेथ और एक होती है गुड डेथ। एक्सेप्टेबल डेथ वो होती है जिसको लोग नॉर्मली इजीली एक्सेप्ट कर सकें, थोड़ी ओल्ड एज में जाके हो, ठीक है, पर्सन जो है वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में हो, काफी दिन से वो बीमार हो, ठीक है, मेंटली तौर पर उसके जो लव्ड वंस है, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो प्रिपेयर हो, ठीक है, उसकी डेथ के लिए। मतलब सबको पता होगा कि सब डेथ का टाइम आ चुका है, 70-80 की एज हो, ठीक है। इस तरह की जो डेथ होती है जो इजीली एक्सेप्ट की जा सके, ज्यादा ड्रामेटिक ना हो, ठीक है, ज्यादा शॉकिंग ना हो, उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेबल डेथ। और दूसरी डेथ होती है गुड डेथ। गुड डेथ में क्या होता है, वो वाली डेथ जो दूसरों का भी भला करे, ठीक है, जो इंसान फौत हुआ है उसके लिए भी फायदेमंद हो और जो इंसान जिंदा है उनके लिए भी फायदा हो, ठीक है जी। किस तरह के अकॉर्डिंग टू इस्लामिक बिलीफ, ठीक है जी, इस्लाम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, उन्होंने फरमाया था कि जो इंसान शहीद होता है तो जब जब शहीद का खून का एक कतरा जमीन पर गिरता है, ठीक है, तो उसके साथ ही क्या होता है, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद आखिरत में वो 70 अपने रिश्तेदारों को, अपने जाने वालों को, 70 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा, ठीक है। और जन्नत में क्या होगा, 72 जो है वर्जिन वुमेन्स के साथ उसका निकाह किया जाएगा, ठीक है, उसको मिलेगी, सही है। मतलब ये क्या है, उसकी डेथ जो है मतलब उनका शहीद होना, शहीद उसकी डेथ की, ठीक है। तो ये जो शहीद हुआ है इसकी जो डेथ है वो सबका भला करेगी, उसका अपना भी और उसके 70 और पीपल्स का भी, मतलब उसके लिए रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स। तो ये वाली डेथ क्या है, ये है गुड डेथ, ठीक हो गया। ये था डेथ का कंसेप्ट जो हर कल्चर में वेरी कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डेथ एंजाइटी का, ठीक है। लोगों के अंदर जो डेथ को लेकर खौफ है, ठीक है, खौफ कितना है, खौफ क्यों है, खौफ कैसे है और उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, इस सबको हम इस टॉपिक में देखेंगे। मेन फीचर है डेथ के बारे में बात करने की पसंद करती हूँ, तो इससे क्या होता है, खौफ पैदा होता है, ठीक है। अपनी डेथ के बारे में और अपने चाहने वालों की, अपने लव्ड वंस की डेथ के बारे में बात करना पसंद
फीड आता है, एंजाइटी आती है, एक ऐसा मतलब मोटिवेटर है कि ये बेस्ट मोटिवेटर है, आप किसी भी बिहेवियर के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी वजह से किसी भी किस्म का बिहेवियर परफॉर्म कर सकते हैं। जब इंसान के अंदर ये खौफ पैदा होता है कि इसने मर जाना है, ठीक है, या सामने वाला बंदा जो है इसने मर जाना, तो उसकी भी बात मान लेता है कि चलो इसने मर जाना, इसका मैं काम कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह उसको फील होता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो उसका दिल करता है चलो ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम कर। ठीक है, मतलब आपको हर किस्म के बिहेवियर के लिए जो डेथ है, डेथ का जो फियर है, डेथ की जो एंजाइटी है, हर किस्म के बिहेवियर के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास डेथ है, डेथ किस किस्म की, मतलब डेथ हमारी पूरी भी हो सकती है। ठीक है जी, हमारी अपनी डेथ, ठीक है, और हमारे मतलब प्यारों की डेथ। ठीक हो गया। और उसके बाद जो मरने के टाइम जो हमारी सिचुएशन होगी, मौत के वक्त किस तरह आएगा, वो सब की सिचुएशन अपने आप को लेकर फियर कि हमारे साथ क्या होगा, और जो दूसरे हैं हमारे जो चाहने वाले हैं उनके साथ क्या होगा, ये हर किस्म की, ये चार किस्म के फियर इसमें आते हैं। ठीक है जी, डेथ के फियर को लेकर सही हो गया। कुछ ये अगर डेथ एंजाइटी हो, डेथ को लेकर फियर हो, तो ये हमें अच्छे बिहेवियर्स के लिए मोटिवेट कर सकता है। लेकिन अगर ये एंजाइटी एक्स्ट्रा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, वाटर एडेंट्स में स्पेशली, तो क्या होता है, इससे लोअर इको इंटेग्रिटी हो जाता है। ठीक है, और फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, अगर मतलब उनमें एंजाइटी आ जाए। और इनमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द पर्संस व्हिच हैव लो डेथ एंजाइटी। ठीक हो गया। मतलब किसी भी चीज का डोज अगर ज्यादा हो तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, मतलब मेडिसिन अगर हम ज्यादा लें तो हमारी डेथ हो सकती है, मतलब वो हमारे लिए नुकसान होता है। इसी तरह डेथ एंजाइटी जो है ये भी एक नॉर्मल लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, ना ज्यादा लो और ना ज्यादा हाई, दोनों सिचुएशन से ठीक है। सही हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास, अच्छा, ज्यादातर लोगों को इस बात का भी खौफ होता है, इस जजमेंट का, कि डेथ के बाद उनके साथ क्या होगा, जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में जाएंगे, उनके साथ वो जो खुद सुनाए जाएंगे अर्थ में उनके साथ क्या होगा, जमीन में कब्र में उनके साथ क्या होगा, वो जलाए जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा, कैसे जलेंगे वो। ठीक है, मतलब जो भी उनके रिचुअल्स हैं, जो भी उनके कल्चरल नॉर्म्स हैं, जिसके मुताबिक उनकी डेथ को कंसीडर किया जाता है, सारे जो उनके हैं, तो वो उस लिहाज से उनका जो फियर होता है। ठीक है, मेनली ये वाले फियर जो है डेथ से रिलेट कर रहे होते हैं कि इंसान को इस चीज का खौफ होता है कि मरने के बाद उसके साथ क्या होगा, जन्नत में जाएगा, दोज़ख में जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक हो गया, ये होता है डेथ का खौफ। और दूसरी चीज ये होती है कि मेरे फिर जो बाकी मेरे जो पीछे मेरे बच्चे हैं, बीवी है, सब उसके साथ क्या होगा। ठीक है, मेरे रिश्तेदार उसके साथ क्या करेंगे, इस तरह के ये जो सारे फियर हैं ये आते हैं डेथ एंजाइटी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि अब दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है अपने, जब लोगों की डेथ का फियर होता है वो ये होता है कि मतलब वो जिन लोगों को ये डेथ ये फियर होता है किसी दूसरे की डेथ का, तो उनके अंदर इस किस्म का फियर होता है कि बाद में उसके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ क्या होगा। ठीक है, मतलब उसके फैमिली मेंबर्स को फियर होता है कि अगर ये मर जाएगा तो मेरे हमारे साथ क्या होगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स को भी इसी किस्म का फियर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अब डेथ जब होती है तो इसमें दो लोगों को ज्यादा होता है। एक तो मतलब जो इंसान मर रहा है, ठीक है, उसको क्या करना होता है, उसको प्रोसेस ऑफ टाइम बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, जिस पर मौत आई है उसको मौत वाला सारा सब बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, और जो पीछे लोग रह जाते हैं उनको इवेंट ऑफ डेथ बर्दाश्त करना पड़ता है, वो डेथ के उनको सारे मतलब दुख बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, और सारे रिचुअल्स वगैरह बर्दाश्त करने पड़ते हैं, वो सब कुछ जो है आ जाता है इसमें। ठीक हो गया। लेकिन ज्यादातर लोग जो है मतलब एक हाई नंबर जो है वो डेथ से फ्रेंड, मतलब उनको मरने का खौफ नहीं है। ठीक है, लेकिन किस चीज का खौफ है, इस चीज का कि वो मरेंगे कैसे। ठीक है, हाउ दे विल डाई, मतलब उनकी मौत से उनको कोई परेशानी नहीं होगी, जो भी कॉस्ट वगैरह आएगी उनकी वो मतलब दफनाने वगैरह में उस सब में उन लोगों के लिए बर्डन तो नहीं बनेंगे। और अगर उनकी मौत किस सिचुएशन में होगी, ज्यादा पेन तो नहीं होगी, मतलब ये सारी जो सिचुएशन है उनके लिए डेथ का फियर इस चीज का होता है। ठीक है, उनके लिए जन्नत दोज़ख नहीं मैटर कर रही होती, उनके लिए होता है कि जब वो मरेंगे तो वो कैसे मरेंगे, दुनिया वाले मतलब उनके किसी पर बर्डन तो नहीं उनका हो जाएगा, इस किस्म की सिचुएशंस को लेकर उनको फियर होना होता है। ठीक हो गया। अब इस सारे फियर से बचने के लिए लोग करते क्या है, ज्यादातर लोग डेथ एंजाइटी से बचने के लिए अवॉइडेंस यूज करते हैं। ठीक है, वो अवॉइड करते हैं, वो इन सारी सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं जिनके जरिए उनके कॉन्शियस में उनके
माइंड में डेथ एंजाइटी अराइज होती है, ठीक है। वो लोगों के फ्यूनरल्स पे जाना बंद कर देते हैं, जहाँ कहीं डेथ हुई उस एरिया में जाना बंद कर देते हैं, एक्सीडेंट्स वाले एरियाज को विजिट नहीं करते, ठीक है। वो अपने आप को उन जगहों से रोकते हैं जहाँ पर उन्हें ये फीलिंग्स आए कि उन्होंने भी मर जाना है, ठीक है, या उनके चाहने वालों ने मर जाना है। लोगों को कंसोल करना उनकी मतलब वो ईमानदारी सिचुएशन होती है डेथ वाली, ठीक है। तो वो जो अफसोस वगैरह करना वो सबको अवॉइड करते हैं, अपने आप को उस दुनिया से बाहर रखते हैं, ये रियलाइज नहीं करना चाहते कि डेथ भी एक मतलब मस्त चीज है, होनी होनी है, वो अपने आप को उससे थोड़ा अवेयर रखते हैं, ठीक हो गया। इस तरह से वो अपने आप को डेथ से रोक के रखते हैं, मतलब उससे बच के रखते हैं। लेकिन क्योंकि उनके अंदर होती है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को रिस्क एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। जंपिंग और स्काई ड्राइविंग, रॉक क्लाइंबिंग और इस तरह के सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून, मतलब वो अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज में डेथ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको मतलब डेथ एंजाइटी वो अपने अंदर नहीं आने दे रहे होते, तो इस तरह से वो इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कुछ लोग अब डेथ एंजाइटी से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, मतलब ह्यूमर वगैरह इस तरह के ज्यादा पार्लर में काम करने लग जाते हैं, इस किस्म के काम करने लग जाते हैं जिसमें वो डेथ के करीब होते हैं, तो ऐसे ऐसे उनके अंदर से डेथ एंजाइटी कम होती है, ठीक हो गया। इस तरह से भी डेथ एंजाइटी को वो अपना कम करते हैं। डेथ एंजाइटी को लेकर एक और फैक्टर आता है रिलीजियोसिटी, मतलब हमारा जो रिलीजियस है हमारा उस पर कितना बिलीव है। अगर हम अपने रिलीजियस नॉर्म अच्छे से बिल्कुल फुलफिल कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब हमारा जो भी हमारा दीन है हमें कहा हुआ है कि ये करना है आपने, तो अगर हम वो अच्छे से फुलफिल कर रहे हो तो उसके बाद क्या होता है, उससे भी हमारे अंदर डेथ एंजाइटी कम हो जाती है, ठीक है। तो जिस तरह की उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने एक रिसर्च की हिंदू मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के बारे में, परशुराम एंड शर्मा ने, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो हिंदूज हैं जिनके अंदर ये बहुत ज्यादा बिलीव था कि एक जिंदगी होती है मौत के बाद, ठीक है, तो वो अपने आप को उस जिंदगी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब उनके अंदर ये ज्यादा बिलीव था, तो उनके अंदर क्या हुआ, डेथ एंजाइटी कम से कम, ठीक है जी। उनके पास मुस्लिम्स में कम थी, ठीक है, और उसके बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंजाइटी जो थी वो क्रिश्चियंस में। मतलब जैसे जैसे आपका बिलीव जो है वो डेथ को लेकर इंक्रीज होता है, लाइफ आफ्टर डेथ के लिए इंक्रीज होता है, ठीक है, वैसे वैसे डेथ एंजाइटी भी कम होती जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल एग्जाम, अगर आप एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर हो तो आपको उतना डर नहीं लग रहा होगा, अगर कोई और बच्चा है जिसने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की हो वो भी एग्जाम देने आए, ठीक है, तो दोनों के अंदर एग्जाम एंजाइटी का लेवल डिफरेंट होगा। अगर आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर हो तो आपको खौफ नहीं आ रहा होगा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम डेथ के लिए प्रिपेयर होंगे जो लोग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस बिलीव्स, जो उनके दीन उनके मजहब ने उनको कहा हुआ है, उस लिहाज से अगर वो अपनी डेथ के लिए प्रिपेयर है तो उनके अंदर डेथ एंजाइटी नहीं होगी, ठीक है, या फिर कम से कम होगी, सही हो गया, बनिस्बत उनके जिन्होंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, सही हो गया। उसके बाद जिन लोगों में रिलीजियस बिलीफ ज्यादा होते हैं, जिनका मजहब पे यकीन ज्यादा होता है, उनके अंदर भी क्या होता है, डेथ एंजाइटी कम से कम होती है, ठीक है। और जिनके अंदर जिनके रिलीजियस बिलीफ उनके जिनके स्ट्रांग नहीं होते, वीक होते हैं, उनके अंदर डेथ एंजाइटी भी ज्यादा होती है। और ये वाली बात जब प्रूव हुई है रिलीजियस बिलीफ वाली, ईरानियन मुस्लिम्स 1176 पर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिन्होंने अभी अभी वॉर से गुजरे थे, ईरान इराक वॉर वाली, ठीक है, तो उससे उन्होंने देखा कि जिन लोगों में ज्यादा रिलीजियस बिलीफ अच्छे थे, ठीक है, उनके अंदर डेथ एंजाइटी कम से कम थी, और जिनके अंदर रिलीजियस बिलीफ वीक थे उनकी डेथ एंजाइटी बहुत ज्यादा थी, ठीक हो गया। अच्छा जी, रिलीजियस से हटकर कुछ इस तरह भी है कि हमारा जो है ना, कुछ कल्चर्स में डेथ डिनाइंग होता है, ठीक है जी, या फिर इसको हम डेथ डिफाइन भी कहते हैं, कुछ कल्चर्स में डेथ एक्सेप्टेंस होता है, डेथ अफर्मिंग सोसाइटी, ठीक है। डेथ डिफाइन वाली जो डेथ को डिनाई कर रही होती है, ठीक है, उनमें क्या होता है कि वो डेथ को अवॉइड कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब इलनेस वगैरह से वो लड़ते हैं, अपने आप को मरने से रोकते हैं, ठीक है, ज्यादा उनके अंदर ये कंसेप्ट होता है। लेकिन कुछ जो होती हैं उनमें क्या होता है, डेथ अफर्मिंग सोसाइटीज जो होती हैं, जिनको यकीन होता है कि उन्होंने मर जाना, तो इतना ज्यादा नहीं लड़ते मौत से, ठीक है, और अपने आप को मौत के लिए प्रिपेयर करने लग जाते हैं एट द एज ऑफ 40, ठीक हो गया। उसके बाद आगे उनके क्या होता है, इससे खुद ही प्रिपेयर होने लग जाते हैं डेथ के लिए, अपने माइंड को रेडी कर रहे होते हैं, तो मरने वाले उनकी डेथ एंजाइटी कम होती जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ हद तक है हमारी जो डेथ एंजाइटी है हमारे लिए अप्रोप्रिएट होती है, मतलब अगर हमें मौत को लेकर खौफ होगा तो फिर क्या करेंगे लोग, अपने आप को रिस्क, मतलब रिस्की लाइफ जो अच्छे से बचाएंगे, ठीक है, खामखा अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालेंगे, जिस तरह रिस्क वाले इतने झूले होते हैं, ठीक है, उस सब से मतलब अवॉइड करेंगे,
अच्छी बात नहीं, ठीक है। तो ये उनके अंदर पैदा होता है, ठीक है, डेथ एंजाइटी से। सही हो गया। और डेथ एंजाइटी को डील किया जा सकता है अगर आप अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट एंजॉय करें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कलीश इज टू लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। अगर हम अपनी जिंदगी भरपूर जिए, ठीक है, तो हमें मौत का लेकर फिर गम खत्म होता जाएगा। मतलब जो भी हमारा दिल करे हमने वो एंजॉय कर लिया, लाइफ को फुलेस्ट एंजॉय किया, ठीक है, तो फिर मौत को लेकर खौफ खत्म होता जाएगा, ठीक है। एक और तरीके से हम डेथ एंजाइटी कैसे कम कर सकते हैं, लोगों को डेथ एजुकेशन दें, ठीक है, उनको बताएं कि डेथ कैसे होती है। और मतलब उनको अगर अपने रिलीजन फिलोसफी उनके जो इस सब के मुताबिक उनके बिलीफ स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, तो उनका डेथ एंजाइटी कम होती जाएगी, ठीक हो गया। और सो दैट्स ऑल अबाउट डेथ एंजाइटी, ठीक है। वर्कशॉप्स वगैरह हो इस सब के बारे में लोगों को डेथ एंजाइटी कम होती जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रीफ एंड बेरीफमेंट, ठीक है जी। ग्रीफ और बेरीफमेंट क्या होता है, वर्डन जो है मॉडर्न उन्होंने क्या किया था, ग्रीफ को डिफाइन किया था एज द पर्सनल इमोशनल रिएक्शन दैट फॉलो लॉस, ठीक है। हमारे जो पर्सनल इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, हम अपने इमोशंस को किस तरह से रिएक्ट करते हैं, सैडनेस के जरिए, एंगर के जरिए, गिल्ट के जरिए हम रोते हैं, ये सब कुछ हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये क्या होता है, ग्रीफ होता है। और ये हम क्यों एक्सप्रेस करते हैं, ये क्यों हमारे अंदर आ रहे होते हैं, क्योंकि हम ये फील करते हैं कि हमने कुछ खो दिया, ठीक है। जब भी हम कुछ लॉस करते हैं, हमारा कुछ खो जाता है, हमसे कुछ छीना जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे अंदर ये इमोशंस पैदा होते हैं, ये क्या होता है, मतलब ये हमारा दुख होता है, ठीक है। लेकिन बेरीफमेंट क्या होता है, बेरीफमेंट वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं जब भी हमारा कोई चाहने वाला जो है वो इस दुनिया से चला जाता है, ठीक है। मोurनिंग, ये जो मातम, रोना धोना, ये वाला जो प्रोसेस है, ये हमारा किसमें आता है, ग्रीफ में आता है। हम अपने ग्रीफ को, हम अपने दुख को, अपनी तकलीफ को क्या करते हैं, जाहिर करते हैं मॉर्निंग के जरिए, ठीक है। ये जो मॉर्निंग का प्रोसेस है, ये जो मातम का प्रोसेस है, क्या होता है, दुख का, तकलीफ का, ये हर कल्चर में डिफरेंट होता है, ठीक है। हर कल्चर के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप अपने कल्चर के लिहाज से इसको परफॉर्म करते हैं तो आपको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और मतलब आपकी तकलीफ को समझा जाता है कि हाँ जी इस बंदे को दुख हो रहा है, अपना ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। जिस तरह कुछ कल्चर में इस तरह होता है कि जो क्लोज, अगर कोई फोत हो जाए तो क्या करते हैं घर वाले जो है वो सारे वाइट या फिर ब्लैक क्लॉथ मतलब वेयर करते हैं, ठीक है। जिस तरह हिंदुइज्म में वाइट क्लॉथ्स है, क्रिश्चियनिटी में वहाँ पर ब्लैक क्लॉथ्स है, तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट मतलब वो अपने जो क्लॉथ्स है उसके जरिए ये एक्सप्रेस करते हैं कि वो तकलीफ में, ठीक है। ये मातमी रंग उन्होंने पहना होता है अपनी तरफ से, ठीक है, ये उनका अपना कॉन्सेप्ट होता है, सही हो गया। कुछ कल्चर्स में अपनी जो वो तकलीफ है वो इस तरह जाहिर करते हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन में वो इस तरह मतलब बिहेव करते हैं, तो वो एक्सेप्ट किया जाता है उनको, उस बिहेवियर को, उससे ये पता चलता है कि ये तकलीफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे इस बिहेवियर में, हमारे इस कल्चर में एज अ पाकिस्तानी कोई किसी की फौतगी हुई है और उसके घर वाले उठ के जाके ड्रिंकिंग करना शुरू करते हैं, शराब पीना शुरू करते हैं और नाचना गाना शुरू करते हैं, हम तो कहेंगे कि ये पागल हो गए, मतलब इनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया, क्योंकि हमारे कल्चर में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप अपने कल्चर से हट के परफॉर्म करेंगे तो आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो वाली वो पर्सन एक्सेप्टेड होते हैं जो अपने वो मतलब अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेव करें। अब जिन कल्चर्स में ये ड्रिंकिंग डांसिंग का ट्रेंड है वहाँ पर इसी को ही मतलब समझा जाता है एज अ मतलब मैटर ऑफ ग्रीफ, कि मतलब यही बंदा जो है अपना ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहा है, सही हो गया। उसके बाद जिस तरह ब्रेकअप्स वगैरह के सीन्स होते हैं जो मतलब इस तरह होता है, तो क्या होता है कि बाद में भी लोग कहते हैं कि ड्रिंकिंग डांसिंग एक्सेट्रा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये सारी सिचुएशंस होती हैं, तो ये उनका अपना एक एक्सप्रेशन का तरीका है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास मतलब ये हमारे रिचुअल्स हैं, जो भी उनका ये ट्रेंड होता है, जिनका ये रिचुअल है कि उन्होंने व्हाइट क्लॉथ पहनने हैं, अगर दूसरे किसी और कल्चर में जिनका ब्लैक क्लॉथिंग का ट्रेंड है, अगर वो व्हाइट क्लॉथ पहन लें तो वो अजीब लगेंगे, ठीक है। और जिनका इसी तरह व्हाइट क्लॉथ का है तो वो अगर ब्लैक पहन लें तो वो अजीब लगेंगे। तो जो आपका ट्रेंड है आपको उसी बिहाव से अपने मॉर्निंग को, अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। ये एक मातम का तरीका होता है इस मतलब ट्रेंड के जरिए, सही हो गया। उसके बाद कुछ हम इन डिफरेंसेस
گا. یہ سارا کچھ کامن ہوتا ہے ہر کلچر میں. صحیح ہو گیا. اس کے بعد ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارا جو مارننگ ہے یہ ٹریٹمنٹ کے بعد ہوتا ہے. جس طرح مطلب مارننگ اور ٹریٹمنٹ اکٹھا آ رہا ہوتا ہے کہ مطلب پہلے انسان ایکسپیرینس کرتا ہے, فیل کرتا ہے کہ اس نے لاس کیا, پھر اس کے بعد وہ روتا ہے. ٹھیک ہے, مارننگ کرتا ہے. یہ سارا اس طرح چلتا رہتا ہے سیکوینس کے ساتھ. صحیح ہو گیا. اس کے بعد ہمارا یہ جو گریونگ کا پروسیس ہے, کچھ تھیورسٹ نے اس کو کہا کہ یہ مطلب اسٹیجز ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ رونا دھونا ہی بنا ہمارا یہ جو کوئی شخص کون کرتا ہے, کوئی چاہنے والا, تو اس دوران پھر اس کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے اس کو ایکسپریس کرنے والا اور اس پھر سنبھلنے والا, اس کو ہم اسٹیجز یا پھر فیزز میں مطلب انہوں نے شو کیا. ٹھیک ہے, جو اس کے 3 فیزز انہوں نے شو کیے. فرسٹ فیز میں یہ ہوتا ہے کہ جو جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی جانے والا, اس کا کوئی چاہنے والا فوت ہو گیا, تو سب سے پہلے تو وہ شوق, مطلب شوق ہوتا ہے, ڈسبلیف اور نمنس, مطلب ان کو یقین ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے, اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا ہوتا. سب سے پہلا یہ فیز ہوتا ہے. لیکن دوسرے فیز میں جب وہ ریئلائز کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ والا جو شخص ہے وہ مر چکا ہے, اس میں دوبارہ کبھی نہیں آنا. ٹھیک ہے, اور تیسرے فیز میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو گلٹ, مطلب سب کچھ فیل ہونے لگ جاتا ہے. وہ ریزن دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ اگلا مرا کیوں, پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کیسے مرا ہے, اور سب کچھ اس بارے میں دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح یہ ہمارے پاس 3 فیزز ہوتے ہیں. سوری, یہ والا جو فیز ہے جس میں وہ ہم یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ اگلا مرا کیوں ہے, اس کا گلٹ وغیرہ فیل کرنے لگ جاتے ہیں سب کچھ, تو یہ ہمارا سیکنڈ فیز میں ہی آتا ہے. مطلب وہ والا فیز جس میں ہم ریئلائز کرنے لگ جاتے ہیں, خود کو یقین دلانے لگ جاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ مر گیا اور اس نے اب واپس نہیں آنا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس سیکنڈ فیز ہوتا ہے. تھرڈ ہمارے پاس جو فیز ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ریکوری والا. ٹھیک ہے, اس میں انسان جو ہے اپنے اس دکھ میں سے باہر آنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ریکور ہونے لگ جاتا ہے. مطلب وہ پھر لوگوں کے ساتھ واپسی, مطلب اس کو یہ فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ اس کی اپنی بھی رسپانسبلٹیز ہے, وہ اس کام کو لے کر بیٹھا تو نہیں رہ سکتا نا, اس نے اپنی جاب کرنی ہے, اپنے بچوں کو دیکھنا, سب کچھ. تو ایسا ایسا مطلب وہ پیچھے دنیا کی طرف آنے لگ جاتا ہے, ریئلائز کرنے لگ جاتا ہے, لوگوں سے ملنے لگ جاتا ہے. تو وہ ساری سچویشن ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں ریکوری, مطلب وہ اپنے اس سارے دکھ غم سے باہر آ جائے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے کہ مطلب جو انسان بہت ہوا ہے, مطلب جو بھی یہ مارننگ والا جو پروسیس ہے کسی کے لیے بھی, یہ جو فیزز ہیں, تو اس میں کیا ہے کہ کوئی کتنے ٹائم میں کس فیز میں ہے, اس سے لوگوں کو کئی سال بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ہمارے پاس وارڈن نے 4 ٹاسک بتائے تھے, مطلب مارننگ میں 4 ٹاسک ہمیں پرفارم کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹاسک میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اس تکلیف کو, اپنے اس لاس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہاں جی ہم نے اس انسان کو کھو دیا, اور اس کو ہم ایکسیپٹ کیسے کرتے ہیں, اگر ہم میت کو دیکھیں, کارپس کو دیکھیں, ٹھیک ہے, فنرل وغیرہ سروسز وہ سب ہم اچھے سے اٹینڈ کریں, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں جی ہم نے ریالٹی کو ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے, اگر وہ سب مس ہو جائے, اگر آپ دیکھ نہ سکیں لاسٹ مومنٹ پہ, تو وہ پھر مطلب گلٹ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ نے اس سب کو دیکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ ریالٹی کو ایکسیپٹ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ ٹاسک ہوتا ہے تھوڑا پین آف گریف, آپ کو اپنی اس تکلیف سے گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ سارے مارننگ والا ماتم رونا دھونا اگر وہ نہیں کریں گے, تو آپ کا جو پین ہوگا وہ اندر ہی رہ جائے گا, تو اب نارمل گریف بن جائے گا. اس کو ایکسپریس کرنا بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. ٹھیک ہے, مطلب پین کو اوائڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ٹاسک 3 کیا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہونا ہے جس میں کوئی شخص مرا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا چاہنے والا مرا ہے, اس آپ نے انوائرمنٹ میں اچھے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے, مطلب اس انوائرمنٹ سے نہ بھاگیں. فار ایگزامپل, آپ کے گھر سے خدا نہ خواستہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے, تو آپ مطلب گھر چھوڑ کے چلے جائیں. اس طرح نہیں, آپ کو اس گھر میں رہنا ہوتا ہے, اور اس سے مطلب اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا برداشت کرنا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, یہ ہمارا ٹاسک 3 ہوتا ہے, مطلب آپ اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں جہاں سے ایک شخص چلا. ٹھیک ہو گیا. اور ٹاسک کو کیا ہوتا ہے کہ اپنے ایموشنلی کیا کرتے ہیں, اپنے جو ڈیسیز ہے, جو مر چکا ہے, اس کو کسی اور کے ساتھ ریلوکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنی لائف آگے فردر مطلب چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ مطلب اس کی آپ جگہ رکھ دیتے ہیں کہ اب جو پہلے زندہ تھا اب وہ مر گیا. ٹھیک ہے, اور مطلب سب کچھ چینج ہونے لگ جاتا ہے, اس کی ویلیو چینج ہونے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, یہ ٹاسک 4 ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے نارمل ورسز اب نارمل گریف ریئیکشن. مطلب نارمل کیا ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے مطلب اس کے اکارڈنگ, اپنے ریچولس کے اکارڈنگ ایکسپریس کرتے ہیں, وہ نارمل گریف ریئیکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اپنے ریچولس کے مطابق ایکسپریس نہیں کرتے, تو وہ اب نارمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مطلب جو آپ کے ریچولس ہیں, فار ایگزامپل بلیک کلاتھنگ ہے, وائٹ کلاتھنگ ہے, تو اس کے ذریعے آپ ایکسپریس کریں. ٹھیک ہے, تو وہ نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن وہی اگر آپ کسی اور کلچر کو ایکسپریس کریں, تو وہ اب نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ
होते हैं ग्रीफ रिएक्शंस। लास्ट वन हमारे पास आता है फ्यूनरल एंड डेथ रिचुअल्स, मतलब हमारे अपने ट्रेंड्स, हमारे अपने रिचुअल्स हर कल्चर के डिफरेंट होते हैं कि वो फ्यूनरल और फ्यूनरल्स वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है, दफनाते कैसे। चलिए फ्यूनरल को कंसीडर किया जाता है कि एक ट्रांजिशन का प्रोसेस है, मतलब आप एक इंसान को जो बहुत हो गया है उसको आगे भेज रहे हैं, मतलब एक अच्छे तरीके से भेजा जा रहा है उसको, उसकी नई लाइफ साइकिल के लिए, नई लाइफ के लिए, मतलब जो उसने पूरी एक लाइफ गुजारी है उसको नई लाइफ के लिए आगे डेथ के बाद वाले प्रोसेस के लिए आगे एक अच्छे तरीके से भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक ट्रांजिशन का प्रोसेस जिसके लिए हम एक फ्यूनरल वगैरह करते हैं, ठीक है। अब ये भी मैटर करता है कि फ्यूनरल वगैरह कितने दिन, अब कई सोसाइटीज में ये होता है कि वो मैयत को रखते हैं, फिर उसके बाद आगे फिर सारे रिश्तेदार आते हैं, कुछ दिन वहाँ तक वहीं पर रहती है, लोग उसको देखते हैं और उसके बाद फिर रहने तक आते हैं। लेकिन कई जगहों पे ऐसा मतलब जब नहीं कोई इतना खास होता तो वो उसको जल्दी दफना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह मतलब कुछ अब ये होता है फ्यूनरल में लोग भी खड़े होकर अपने जो चाहने वाला है उसके बारे में बातें करते हैं कि ये शख्स ऐसा था, उसके बारे में सारे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, तो ये उसका एक मतलब एक उसको रिस्पेक्ट देने का तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि बच्चा था, ठीक है, 8 ईयर ओल्ड बॉय था, उसकी डेथ जब हुई है तो 2 दिन बाद उन्होंने क्या किया, उसको दफना दिया, ठीक है। और उसके मतलब इस फ्यूनरल में बहुत कम लोग अटेंड, मतलब बहुत कम लोग आए थे और ज्यादातर लोगों ने मॉर्निंग वाले क्लॉथ भी नहीं पहने थे, ठीक है। तो अब इस सब से क्या एक्सप्रेस होता है कि उन लोगों को मतलब वहाँ पर उस सोसाइटी में उस बच्चे की डेथ का ज्यादातर लोगों को अफसोस नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा बच्चा तो उसके साथ अटैचमेंट भी कम होगी, ठीक है, लोगों की उसके साथ रिश्तेदारियां भी कम होंगी, तो उसके सोसाइटी में उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से लोगों ने उतना अफसोस नहीं किया उसकी वजह का, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला क्यों नहीं अफसोस किया, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर लोग उसकी फ्यूनरल में आए नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद उसको उन्होंने दफनाया 2 दिन बाद, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने लोगों ने मॉर्निंग वाले क्लॉथ भी नहीं पहने, ठीक हो गया। तो इस तरह फ्यूनरल से ये एक्सप्रेस होता है कि ये जो पर्सन है इसको कितने लोग पसंद करते थे, कितना लोग इसको आगे मतलब अच्छे से भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा जी, फ्यूनरल का एक और भी मकसद होता है कि इससे क्या होता है कि जो मैयत होती है उसको एक न्यू आइडेंटिटी दे, मतलब जो इंसान होता है जो मर गया है तो उसको तो मैयत का नाम देते हैं, लेकिन जो जिंदा है जो पीछे बच गए हैं उन सबको भी एक न्यू आइडेंटिटी मिली है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शोहर फौत हुआ है तो उसकी बीवी को ये आइडेंटिटी मिली है कि वो बेवा हो गई है, बच्चों को ये आइडेंटिटी मिली है कि वो यतीम हो गए हैं। इसी तरह अगर कोई औरत फौत हुई है तो इसी तरह उसका जो शोहर है वो मतलब इस तरह हो गया, ठीक है। तो इस तरह मतलब जब भी कोई डेथ होती है तो उसके बाद जो रिमेनिंग उसके पर्सन होते हैं, उसके जो लव्ड वंस होते हैं, उनको एक न्यू आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है। और वो जो न्यू आइडेंटिटी है वो पब्लिकली एक्सप्रेस हो जाती है, मतलब सारे रिश्तेदारों को पता चल जाता है, ठीक है, सब लोगों को एक पता चल जाता है। स्पेशल इस तरह नहीं मतलब डोनेट मतलब प्रोमिनेट नहीं किया जाता, इससे खुद ब खुद सबको पता चल जाता है। तो फ्यूनरल का एक ये भी मकसद होता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि फ्यूनरल के जरिए आपको एक पब्लिक वो सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। आपके सारे रिश्तेदार आपके पास होते हैं, आप अपने मतलब उन गम वाले जज्बात को, अपने मॉर्निंग, अपने ग्रीफ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लोग आपको कंधा देने के लिए होते हैं, रो सकते हैं, इस तरह ये इस सारी सिचुएशन के लिए फ्यूनरल्स रखे जाते हैं, ठीक हो गया। मतलब फ्यूनरल के जरिए आपके जो चाहने वाले हैं वो आपको क्या करते हैं, आपके जो मतलब रिश्तेदार हैं, सब कुछ दोस्त अहबाब, वो क्या करते हैं, आपको एक सपोर्ट देते हैं। वो जिस इंसान का रिश्तेदार फौत हुआ है, ठीक है, वो उसको एक मतलब तसल्ली देते हैं, ठीक है। तो ये एक मकसद होता है फ्यूनरल का। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। हमने डिस्कस किया कि डेथ को लेकर लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद जो डेथ होती है उसको एक्सप्रेस करने का, अपने गम को, अपनी तकलीफ को एक्सप्रेस करने का हर कल्चर में डिफरेंट वे होता है, और हमारा ये जो ब्यूरियल और फ्यूनरल रिचुअल्स हैं ये भी हर कल्चर में डिफरेंट होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी एंड अल्लाह हाफ़िज़।